ये जो सर्किल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx+2fy प्लस सी, कोई भी जनरल सर्किल हो, इस सर्किल का डू यू गाइस रिमेंबर हाउ टू फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट? Do you guys remember the formula for the length of the tangent? So Root S1. x1 square plus हाँ, रूट y1 ऑफ square. x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर. y हाँ, square minus r या फिर इन शॉर्ट रूट ऑफ क्या root of बोलेंगे? s1. 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 Yes, yes. This expression S1 is also called as power of the point. If I did not mention it before, now you guys understand. Power of the point is just S1. S1 is called as the power of the point. Okay, that is the name. S1 मतलब power of the point. अगर ये expression कभी भी दिखे तो just understand power of the point S1 है. और एक चीज, of course, length of tangent is root S1. This also you guys know. Another simple fact that you guys already know is अगर P कोई भी point है और A और B रहेंगे तो PA into PB is also same as power of the point only. PA into PB is equals to PC into PD is equals to PT square होता है, वो याद है ना? Yes, sir. Yes, sir. PT square होता है, PT मतलब root S1 है, उसका square मतलब S1 ही हो गया, मतलब PA into PB is also the power of the point. Okay. चलेगा, एक क्वेश्चन करते हैं. ये मैंने कभी मेंशन किया क्या नाम पावर ऑफ द पॉइंट? Yes, Sir, sir. first lecture में. ओके ओके ओके, बस इतना सही है कॉन्सेप्ट, जस्ट फॉर्मली मैंने इंट्रोड्यूस किया. एक क्वेश्चन करते हैं. डू यू गाइस वांट टू राइट दिस डाउन? ओके, राइट ऑन. If the distances of origin, if the distances of origin to the centers of three circles, if the distances from origin to centers of three circles, x square plus y square plus 2 lambda ix minus c square is equals to 0. X square plus y square plus 2 lambda ix minus c square is equals to 0. ब्रैकेट में I is equals to 1 2 3, ब्रैकेट में I equals to 1 2 3, R in GP, then prove that फिलहाल के लिए ऐसे कर देते हैं. Prove that the lengths of tangents from any point, on the circle x square plus y square equal to c square to given circles are also in GP. If distance from origin to the centers of the three circles are in GP, then prove that the length of tangents from any point on x square plus y square equals to c square to the given circles are also in GP. बोलो रोमा, कुछ डाउट है क्या? For those who have joined just now, this is the first question which we have done. Just a basic question, warm up है. बाकी लोग मतलब of course तुम लोग आने तक या बाकी लोग आने तक. And good morning to you all.
Now, I hope it is clear to everybody that there are three circles indeed. Writing it in a smarter way than the lazy way. X square plus y square plus 2 lambda I x minus c square equals to 0. I का value 1, 2, 3 हो सकता है. मतलब these are the three circles basically. X square plus y square plus 2 lambda 1 x minus c square. X square plus y square plus 2 lambda 2x minus c square equals to 0. And x square plus y square plus 2 lambda 3x minus c square equals to 0. I'm sorry, what did you say? Anyone? Someone? Done, Anirudh. Okay. So these are the three circles. These are the three circles. In तीनों circles का distance from origin to the center of the three circles. तो of course इन तीनों circles का center क्या होगा? So minus lambda minus 1 lambda 1 comma Minus lambda 1 comma 0. Distance of origin to the center कितना होगा? lambda 1. lambda. Lambda 1. ठीक है? Minus lambda 1 और lambda 1 itself. So lambda 1, lambda 2 and lambda 3. They are in what? GP. Yes. So indirectly ऐसा है कि it has been given that lambda 1, lambda 2, lambda 3 are in GP in an indirect way, and these are the three circles, and these are the three circles. Now, technically, मतलब यहाँ पे मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया क्वेश्चन बनाते टाइम. To be very accurate, guys, modulus lambda 1, modulus lambda 2, modulus lambda 3 should be in GP. So distance से तो specify करना है. डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता. हमें पता नहीं है ना कि लैम्डा 1 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है. Fair enough? Yes sir. Okay. फिर आगे. Tangent from any point on the circle x square plus y square equals to c square onto this circle. Now length of tangent का फॉर्मूला पता होना चाहिए. Length of tangent का फॉर्मूला, those who just joined, we were discussing that. That's why I gave this question. Length of tangent from any point onto a circle is given as root of s1. And another thing which I was discussing initially was this value s1 is called as the power of the point. This value s1 is called as the power of the point. Either way, for the time being, the length of the tangent is basically root of s1. Length of the tangent is basically root of s1. तो root s1 कौन से पॉइंट के रेस्पेक्ट में करना है? सम पॉइंट x1 y1. तो इस क्वेश्चन में वो पॉइंट x1 y1 कहाँ लाई करता है? x1 y1 is some point on this circle. From any point on this circle, lengths of tangents have been drawn to the three circles. तो पहले वाले का length of tangent होगा root of x1 square plus y1 square plus 2 lambda 1 x1 minus c square. Okay, anything we can simplify more here? So x1 square plus y1 square minus c square should be 0. Yes. That is perfectly correct. What is the reason behind that? So because x1 square plus y1 square is C square, because x1 y1 is a point on this circle. So वो 0 हो गया, तो बचेगा root of 2 lambda 1 x1. Similarly, length of tangent onto the second circle will be root of 2 lambda 2 x1. And the last one will become root of 2 lambda 3 x1. And our job is to prove that these three expressions are also in GP. So that is also very easy to prove, guys. Since lambda 1, lambda 2, lambda 3 are in GP already, multiplying with the constant 2x1 will also make them in GP. And if I take square root, will they also be in GP? yes, sir. Square root लेंगे तो भी GP रहेगा. Okay. Are you guys done writing or are you still writing? होमवर्क हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर रहे हैं. Janvi, you had one or two doubts which you text me. Can you ask me now? I don't know if you are here or not. I can't see her, so she's absent.
और किसी ने टेक्स्ट किया और मैंने बोला क्लास में करेंगे? एनीवन? एक चीज, एक सेकेंड. Before doing the next question, I just want to give you a quick revision. ये सर्किल है, तो टेंजेंट कैसे ढूंढेंगे? ये सर्किल है, क्या क्या? पॉइंट से ना. हाँ, मतलब इट डिपेंड्स ऑन द सिनेरियो, इट डिपेंड्स ऑन द Yes, sir. सिनेरियो. टेंजेंट ढूंढो मतलब कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए ना टेंजेंट, वरना तो इनफाइनिटली मेनी टेंजेंट्स है सर्किल के, कुछ तो इन्फॉर्मेशन देना चाहिए. तो कैसा इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट कर सकते हैं क्वेश्चन मेकर टेंजेंट देने के लिए, टेंजेंट ढूंढने के लिए? पॉइंट दे सकते हैं और सेंटर का पॉइंट दे सर्कल. सकते हैं. ओके, पॉइंट दे सकते हैं तो दो टाइप के क्वेश्चंस हो जाएंगे. पॉइंट दे सकते हैं तो पॉइंट ऑन द सर्किल हो सकता है या पॉइंट आउटसाइड द सर्किल हो सकता है. पॉइंट इनसाइड द सर्किल हो सकता है क्या? नो सर. No, sir. No, sir. टेंजेंट डजंट मेक सेंस. पॉइंट ऑन द सर्किल होगा तो टेंजेंट कैसे ढूंढेंगे? x(x1 + y1). यस, x(x1 + y(y1), ये शॉर्टकट में इसको t = 0 बुलाएंगे. इफ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्किल देन ऑफ कोर्स एक नहीं बल्कि दो टेंजेंट्स बनेंगे. वो कैसे ढूंढते हैं? ये पॉइंट गिवन है हमें, ये पॉइंट इज गिवन. Point outside the circle as well. How to find these two tangents? Slope point, Y minus y1 is Yes. m into Yes, x sir. minus M minus into x1 x minus plus x1 y. plus 1 is r root m1 plus m square. Plus 1 is r root 1 plus m square. Then what we'll do is we'll substitute the point x1 comma y1, solve for the values of m. Solve for the values of m. After getting the values of m, again we can use slope point form. ठीक है, ये सिंपल प्रोसीजर याद होना चाहिए. इसके चक्कर में दोनों इंडिविजुअल टेंजेंट्स हो गए तो नाउ द क्वेश्चन हैज बिकम वेरी वेरी क्लैरिटी, बहुत पावरफुल हो गए तुम लोग. यू कैन फाइंड दिस फुट ऑफ परपेंडिकुलर, पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट्स, एंगल बिटवीन द टू टेंजेंट्स एंड ऑल दिस स्टफ कैन बी फाउंड आउट. ओके, एंड आल्सो और एक सिनेरियो था, कौन सा? स्लोप ऑफ द टेंजेंट दे रखा है तो भी ऑफ कोर्स विल यूज द सेम फॉर्मूला. अच्छा, नाउ फ्यू थिंग्स व्हिच आर, मतलब जो तुम लोग को रटवाते हैं, मतलब सॉरी, जो ऑफनली बुक्स में, थोड़े बुक्स में ऐसे लिस्ट की तरह दे देते, दे डोंट टॉक मच अबाउट इट, दे जस्ट गिव यू द लिस्ट. आई विल आल्सो गिव दिस, डू द सेम, बट इतना रिले मत करो बिकॉज एग्जाम तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा पता नहीं. फ्यू थिंग्स दैट वी शुड बी एबल टू डू. नाउ ये सर्किल है, ये पॉइंट पी है बाहर. सबसे पहले CACB का लेंथ होगा ऑफ कोर्स रेडियस, उसमें तो कोई डाउट नहीं है. और CA इज परपेंडिकुलर टू AP, वो भी डाउट नहीं है. एंड PA PB वो भी सेम रहेंगे क्या? Yes, sir. Yes, Yes. sir. ये PB सेम रहेंगे. उसका वैल्यू कितना होगा? रूट S1. Root Root S1, yes. Root S1 is the length of the tangent. Root S1 is the length of the tangent. Temporarily L करके बुलाता हूँ, which is represents that it is the length of this tangent L. Okay. Other than this, can you guys find angle between the two tangents, tan theta? Yes. You guys can indeed Geometrically find it. You guys can indeed find it. One of the way was discussed already. One of the way was discussed in this manner कि हम लोगों ने ऐसा सर्किल पे क्या किया, दो टेंजेंट्स है, तो ये बताया कि ये एंगल θ/2 रहेगा करके, और ये r है और ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट L है. लेंथ ऑफ द टेंजेंट L है तो tan θ/2 विल बिकम r/L. याद है क्या? Yes, sir. tan θ/2 r/L होगा. आई होप एवरीबॉडी इज रिमेम्बरिंग दिस. r/L होगा और θ/2 इज इक्वल टू tan इनवर्स r/L. tan इनवर्स r/L. या थीटा का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2 times tan inverse R. 2 times tan inverse r/L. This is indeed correct. 2 times tan inverse of r/L. This 2 times tan inverse of r/L को one can simplify it in using inverse trigonometry, which we'll soon study. But the formula will become tan inverse of 2RL divided by L square minus R square. ये और ये सेम ही चीज है. डायरेक्टली थीटा पूछे तो we can use this. या 2 times tan inverse of r/L. ये दोनों फॉर्मूले भी याद नहीं है तो we also know the method. दोनों इंडिविजुअल स्लोप्स ढूंढ लेंगे, m1 m2 using the slope point form and substituting the point, and then using tan theta equals to m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. ठीक है, all this information can be found out. Okay, further more information.
can you by chance tell me how to find the points A and points B? How do you find the point A and point B? सर डिस्टेंस की पता है रेडियस और रूट टेस्ट तो उसे इक्वेट कर सकते हैं। A कॉमा B assume क्या क्या could you clarity से बता सकता है क्या? सर A कॉमा B assume करेंगे और सेंटर और पॉइंट P दिए हो तो उसे डिस्टेंसेस पता है तो कर सकते हैं। तो Okay. इक्वेशन Okay. तो what he's saying is ये point A को assume कर रहा है x1, y1 and is applying all the conditions. एक है कि x1, y1 सर्किल पे लाई करेगा, that is one equation. और एक चीज x1, y1 का distance from the point P भी पता है, root s1. वो दोनों distances को equal करके दोनों equations को simultaneously solve कर रहा है. Is that clear, others? So we have to find A and B when P and C are given, right? Not the tangent equation or anything. P, C and circle का equation and P are given. जानवी, just joined क्या? No, sir, but sir given का बात नहीं किया था तो मुझे समझ नहीं आया. Okay. थोड़ी देर पहले तुझे बुला रहा था मैं. Sir, I joined at 7:40. Okay. तुझे कुछ doubts भेजे थे? हाँ sir, हाँ. We'll discuss in after this small revision. सिद्धार्थ, you are right यार, अच्छा तरीका है. कोई और बता सकता है कि points A and B कैसे ढूंढना है? Given the equation of the circle and the point. So we can find the tangent का equation and we can compare to x1, y1. That is right. We can find tangent का equation. Is that clear, everyone? We can find tangent का equation. वो बोल सकता हूँ ना statement? Yes, sir. तो फिर what सिद्धार्थ and जानवी are saying कि ये point हम लोग x1, y1 कर लेंगे अगर, तो tangent का equation t equal to 0 होना चाहिए. तो t equal to 0 और अपना found out equation of the tangent compare करेंगे. समझ आ रहा है क्या? Yes, sir. I'm not asking you to solve it. Comparing t equals to c, comparing with t equal to 0. Comparing with t equal to 0. This is one method. Or another method is we can drop foot of perpendicular also from center onto tangent. Is it also fine? Yes, sir. Yes, sir. फुट ऑफ परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो भी आ जाएगा. और पहले स्टार्टिंग में बताते थे लोग, can't we just solve the circle and the tangent? Yes, sir. Tangent. We can also just solve the equation of the tangent and the circle. Then also we'll get the point of contact only. Solve करेंगे तो I'll get equal roots or two roots or no roots or कोई possibility है क्या? Two roots. Two equal roots रहेंगे ध्रुव. Two equal roots. क्यों equal roots रहेंगे? Because it is a tangent. ये समझ आ रहा है ना everybody in the class क्या कर रहे हैं? I'm just casually discussing कि ये सब चीजें हम कर सकते हैं. अच्छा, और next one और क्या ढूंढ सकते हो? A और B अगर मिल गए तो can you find AB का length also? So A और B मिल गए ना, मतलब points. हाँ, A और B मिल जाएंगे तो AB का लेंथ भी मिल जाएगा. हाँ, sir. अच्छा, can you find circumcircle of PAB? Yes, sir, diameter form. Yes, sir. Yes, sir. Circumcircle of PAB will be basically diametric form of what? So P and C as diameter. P and C as the endpoints of the diameter and circle बन जाएगा. वो भी clarity है ना everybody in the class? Yes, sir. Yes, sir. Okay. और areas वगैरह भी ढूंढ सकते हो. Can you also find area of PAB? Yes, sir. Area of PAB. कैसे ढूंढेंगे area of PAB? Triangles में से मतलब कि ACB का एरिया लेंथ निकाल सकते हैं और वो मिल जाए. सर वो हेरॉन्स फॉर्मूला लगा सकते हैं कि अगर साइड ऑफ लेंथ साइड 3 पॉइंट्स मिल गए तो हेरॉन्स फॉर्मूला कर सकते हैं. करेक्ट. तो और एक्चुअली यहाँ नंबर्स नहीं दिख रहे तो और थोड़ा सा टफ लग रहा है. मैं क्वेश्चन करवाता हूँ सो इट विल बी इजियर. सर एक डाउट था, जैसे आपने वो कहा था कि सिर्फ ए की वो इक्वल रूट्स मिलेंगे, ऐसा क्यों? लाइक ए और बी के कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट और वो पॉइंट्स भी ओ डिफरेंट. नहीं. दो टेंजेंट्स मिले ना. पहला टेंजेंट और सर्कल को सॉल्व करेगा तो दो इक्वल रूट्स ए मिलेंगे. सेकंड टेंजेंट और सर्कल को सॉल्व करेगा तो दो इक्वल रूट्स बी मिलेंगे. अच्छा हाँ, ओके सर. मुझे डाउट क्लियर है.
सर ट्रायंगल के एरिया के लिए हाफ बेस साइड भी कर सकता है। हाफ बेस साइड भी कर सकते हैं डेफिनेटली। सर जो हाइट हमने कैसे ढूंढेंगे इब्राहिम? हाँ बोलो। सर पी से ए बी का डिस्टेंस। ए बी का इक्वेशन ढूंढना पड़ेगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम हाँ पॉइंट 1 to परपेंडिकुलर line. फ्रॉम Yes, पॉइंट yes. 1। There are more faster ways which I'll soon discuss. Somebody was asking about यस सर। सर वो t square is equal to SS1 किधर से आया? टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 मैंने डिराइव नहीं किया, मैंने बोला कि कोई भी जनरलाइज्ड कर लेके सॉल्व करोगे तो वो आता है करके मैंने बोल दिया है, वो कोनिक्स में डिराइव करेंगे हम। It will तो take सर one. उसमें जो x1 y1 होता है, that in that we can substitute only points on the circle or No, any no, no. point. Any point, any point. Point on the circle करोगी तो right hand side S1 0 हो जाएगा जानवी। हाँ ये सर। तो that t equal to 0 आएगा, which also makes sense. सर हम लैडर मेथड कर सकते। Ladder method भी कर सकते हैं, p मिल गया तो। सर अगर मैंने कोई भी पॉइंट सब्स्टिट्यूट किया तो what exactly am I getting? You are only going to get a reference if the point is lying outside or inside. You are going to get a constant value. That constant value का root happens to be the length of the tangent also. Yes sir, t square is equal to SS1 में if I put a point, what will I get? Will I get tangents from that point? What will I get? Yes, we'll get tangents from from that point, both the tangents. Okay sir, okay. जैसे कि चाहे तो एक क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, मुझे थोड़ा सा और चीजें बतानी है। Did you guys copy this down? No sir. नहीं, ओके। मुझे थोड़ा सा और लिखना है, which part can I erase? Sir no part. ठीक है, जल्दी कॉपी करना। एक क्वेश्चन करते ही सब कुछ समझ आ जाएगा तुम लोगों को। ये लेफ्ट हैंड साइड जो तीन चीजें है, दिस इज टू फाइंड द पॉइंट्स ए बी। To find a comma b, there are various methods which students were discussing, so all the three things I have written. There are other faster methods to find AB, which we'll study today. थोड़ा भी erase कर दूं क्या, कुछ भी पार्ट? The right side. राइट साइड। यहाँ एक चीज नहीं लिखवा है, सर्कम सर्किल ऑफ पी ए बी, दैट ऑल्सो डायमेट्रिक फॉर्म से करेंगे। सर ये जो आपने लेंथ ऑफ कॉर्ड वाला लिखा, कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट वाला, सर मैंने डाउट काउंटर में उसके बारे में पूछा था तो सर ने कहा आप डेरिवेशन बताएंगे। हाँ, हमने कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट आज इंट्रोड्यूस करेंगे, बट इट्स टू इजी। अभी ए और बी पॉइंट्स ही मिल गए ना तुझे? यस सर। ठीक है। हाँ सर और भी तरीके हैं,
Do you know that area of the triangle is half AB sin theta? Yes, Yes. sir. Yes, sir. You know that, right? तो इस ट्रायंगल में ऑब्जर्व करो, इस ट्रायंगल में हाफ ए बी साइन थीटा का फॉर्मूला यूज करेंगे. हाफ इंटू ए इंटू बी मतलब साइड लेंथ. यहाँ पे साइड लेंथ क्या होगा? पहला साइड लेंथ पी ए जो कि एल है या रूट एस वन, और पीबी भी रूट एस वन ही रहेगा. तो इस पीएबी का एरिया रहेगा हाफ इंटू, समझ आ रहा है क्या जानवी? थोड़ा बहुत सर. ओके. कभी कभी मुझे लगता है आई शुड स्पीक मोर स्लोली. फर्स्ट थिंग, एरिया ऑफ ट्रायंगल. You tell me what is the formula. You just I'll only write it. Half AB sin theta. Can you tell me what is A, what is B sin theta here? अच्छा, So AB side length और sin theta included and that side. जिसको डाउट था स्पेशली, do you guys know this formula, Janvi and others, or not? Yes, sir. Yes, sir. पता है ना? Okay. You should say firstly A and B are the side lengths, कोई भी दो side lengths, but theta has to be the angle involved between them. तो इस क्वेश्चन में देखना, इस क्वेश्चन में PAB का एरिया ढूंढना है, PAB का एरिया ढूंढना है, और ये एंगल थीटा है. तो इसका आंसर होगा हाफ इंटू PA. PA का लेंथ कितना होगा? हाँ सर अभी समझा. हाँ सर वो ए भी कंफ्यूज कर रही थी मैं. ओके ओके ओके. PA is root S1, PB is also root S1 into क्या होगा? साइन थीटा. ठीक है. हाँ सर. इसको रूट S1 को L करके बुला रहे, LL. साइन थीटा ढूंढ सकते हो क्या? Yes, sir. कैसे ढूंढेंगे? So tan theta given है. tan थीटा गिवन है तो साइन थीटा भी ढूंढ सकते हो. ठीक है. Okay, ये sir. डेरिवेशन हो गया. There are more ways. जितना आगे पढ़ोगे और अच्छे तरीके जनरेट होते जाएंगे. Well, are you guys done writing this? सर एक मिनट सर, ये तो हमने एरिया वाला डिराइव कर दिया ना. हाँ. हमने लेंथ कॉर्ड वाला नहीं किया. ओके. कॉर्ड वाला भी ढूंढ सकते हैं. ऐसे मान ले, तुझे थीटा बाई 2 पता है ना वैल्यू? सर थीटा बाई 2. हाँ. tan थीटा बाई 2 कितना था? R/L. R/L है. ओके. सो ये जो लेंथ है, कैन आई से इट इज जस्ट L sin थीटा बाई 2? Yes sir. सो आंसर इज 2L sin थीटा बाई 2. Okay sir. डन. tan थीटा बाई 2 बता तो sin थीटा बाई 2 मिल जाएगा. ओरली कर सकते हैं. tan थीटा बाई 2 कितना मिला था? R/L. R/L. तो sin थीटा बाई 2 हो जाएगा R बाई रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. R². वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो 2LR अपॉन रूट L स्क्वायर प्लस R स्क्वायर. ठीक है ना? Yes sir. सर हाँ बोलो. सर एक्चुअली मेरा बीच में थोड़ा हेडफोन का प्रॉब्लम था. आप जो समझा सकते हो क्या चल रहा है? ओके मैं समझाता हूँ. इनफैक्ट बस मैं क्वालिटी एंड डिफरेंट वेज ऑफ क्वेश्चंस दैट कैन बी आस्क्ड डिस्कस कर रहा था. पॉइंट पी बाहर है सर्कल के, तो पी से लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढ सकते हैं, पी से 2 टेंजेंट्स बना सकते हैं. इन दोनों, ये ट्रायंगल बनेगा, इस ट्रायंगल का सर्कम सर्कल ढूंढ सकते हैं क्या, इस ट्रायंगल का एरिया ढूंढ सकते हो क्या, ये सब कुछ मैं डिस्कस कर रहा था. दैट इज ऑल आई वाज डिस्कसिंग. और उसके बेस में फॉर्मूले बता रहा था विच आई माई सेल्फ डू नॉट एडवाइज मच. एग्जाम तक याद रहेगा कि नहीं रहेगा आई डोंट नो, बट बिना फॉर्मूले के भी कैसे कर सकते हैं, मैं लॉजिक को डिस्कस कर रहा था. एक क्वेश्चन देता हूँ, उसके थ्रू और क्लैरिटी आ जाएगी अपर्णा. श्योर सर. सर जस्ट एक क्वेश्चन, कैसे आए ये सब फॉर्मूलाज? जस्ट लाइक हाँ अभी एक क्वेश्चन के थ्रू ही बता देता हूँ. ठीक है. क्वेश्चन को, ये जो क्वेश्चन दूंगा उसको फॉर्मूले से नहीं करेंगे, जनरलाइज्ड बिना फॉर्मूले के कोशिश करेंगे. रेड ऑन. Find the area of the triangle. अच्छा, अरे one another word I am going to use today now, right now. A and B, what are A and B called as? points of contact. Point of Points of convergence. contact. Just simple English words है.
पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट बिकॉज टेंजेंट को कांटेक्ट कर रहे हैं. these two are called as points of contacts. और ए और बी को जो लाइन ज्वाइन करेंगे Chord of उसको contact. बुलाएंगे कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. कॉर्ड ऑफ कांटेक्ट. कॉर्ड मतलब इट इज ए लाइन ज्वाइनिंग टू पॉइंट्स. Chord joining two points of contact is called as chord of contact. It is just a word. ठीक है. This word is has an important significance in this chapter. फिलहाल के लिए chord of contact word. Okay. Continuing with the question, find the area of the triangle. Find the area of the triangle formed by. Find the area of the triangle formed by. Find the area of the triangle formed by tangents from the point. Formed by tangents. Formed by tangents from the point 4,3 to the circle. To the circle. X square plus y square is equals to 9. X square plus y square equals to 9. And the line segment joining their points of contact. Find the area of the triangle formed by tangents from the point 4,3 to this circle and the line segment joining their points of contact. Chord of contact बोला ही नहीं मैंने. सर वो इक्वेशन के बाद क्या था क्वेश्चन? Find the area of the triangle. Find the area of the triangle formed by tangents from this point onto this circle and the line segment joining their points of contact. And the line segment joining their points of contact. Question समझा क्या? 4,3 से find the equation of find the area of the triangle formed by tangents from this point onto this circle and the line segment joining the points of contact. Is it clear? बार बार बता रहा हूँ question. यस सर. That is correct, Anirudh. We'll wait for 2-3 minutes. Others give it a try. Be creative. You can do it in any method you want. Oh no, Janvi. I'm curious, Janvi, कैसे किया? सर वो सर इसका ट्रायंगल का नहीं निकाला सर, मैंने पीएससी का निकाल दिया. क्या? ठीक है. Do you guys need help? नो सर. No, Siddharth. आर्यन थोड़ा सा मिस्टेक है. आर्यन उसका डबल होगा क्या? Did you not do double or something? Oh, too much decimals, इब्राहिम. फ्रैक्शन में बता सकते हैं तो अच्छा रहेगा. But seems like it's right, first one.
Did you use the formula by chance? Yes, sir. Okay. Line segment wasn't asked, but yes, you have evaluated it, that one also. So second part वही तो है question का. Second part area ही ढूंढना है. Area between tangents and the line segment बोला है. Between. Oh, अच्छा. That So is दूसरे right, part Aryan. में No? क्या क्या? So दूसरे पार्ट में क्या करना है? दूसरे पार्ट कुछ नहीं, एक ही पार्ट है इस क्वेश्चन में. एरिया ही ढूंढना है और कुछ था ही नहीं. तो एरिया में ही बहुत सारा इंफॉर्मेशन आ जाएगा. ओके. अपर्णा को डाउट था, तो टेल मी. अपूर्व इज राइट. अपर्णा कैन यू हेल्प मी आउट? क्या प्लान है? पहले सर्किल पता है, सर्किल का सेंटर भी पता है 0,0. Yes, ठीक sir. है. यस. और Sir, radius पता है रेडियस and कितना है? 3 है. रेडियस 3 है. और क्या Mhm. ढूंढ सकते हो फट से? Sir, origin और P का distance 5 है. ओरिजिन So, और पी का डिस्टेंस भी 5 है. ग्रेट. और तो sir ये length of tangent 4 हो लेंथ ऑफ जाएगा. टेंजेंट कितना है? 4. 4. ओके. लेंथ ऑफ टेंजेंट को जैसे डिराइव किया, तूने पूरा डिराइवेशन किया है, बस आदत डालने के लिए बोल रहा था. लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढने के लिए और शॉर्टर तरीका है. क्या तरीका है लेंथ ऑफ टेंजेंट ढूंढने के लिए? Root S1. रूट S1. वो रियली कर सकते हैं. 4,3 का सब्स्टिट्यूट करेंगे तो 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर माइनस 9 का रूट. Yeah. ओके. तो लेंथ ऑफ टेंजेंट आ गया. तो हैव यू ऑब्जर्व समथिंग स्पेशल इन दिस ट्रायंगल? 3, 4, 5 triangle. Yeah, 3, 4, 5 triangle है. It makes sense that it is 90 degrees. Of course, it should make complete sense to you. Okay, center A और P. Okay, इसके चक्कर में कौन सा एंगल ढूंढ सकती हो? Tan theta by 2, like जो ये angle between ये एंगल ढूंढ tangents. सकते हो. Okay, Yes, sir. let me call this angle temporarily as alpha. So what can you Okay. comment upon this alpha? Tan alpha is 3 by 4. Correct. Tan alpha is 3 by 4. Okay. Now coming back here in this diagram, the diagram is something like this. There is this vertical A, and then let me call this point as Q. ये P है. ये PA का लेंथ 4 है. PA का लेंथ 4 है. See, मतलब I took only a part of the triangle. I am not drawing the remaining part. ये वाला part हटा दिया. Okay. Now ये 4 है, ये अल्फा है. तो कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस हाइट एंड व्हाट विल बी दिस बेस? एक 4 cos अल्फा होगा और ये 4 sin अल्फा होगा. Sir, इधर ही था, like how do we know कि 90 degree for sure बन रहा है? ये कॉर्ड है क्या? AB? Oh, right. Stupid, हाँ. ठीक है. Okay. I hope you told it to yourself. No. चलेगा. I know. ये 4 sin अल्फा होगा, ये 4 cos अल्फा होगा. तो ये एरिया ऑफ द ट्रायंगल क्या हो जाएगा? हाफ इनटू 4 sin cos alpha and 4 sin alpha, yeah. Yes. So our answer can be given as twice of this whole thing. Yes, sir. That's it. You can do all of them. 4 4 16 हो गया. Sin alpha cos alpha यहाँ से मिल जाएगा. Yes, sir. 3 by 5 4 by 5 और vice versa. बस this is only the answer. Okay, sir. प्रभास चेक करना क्या मिस्टेक किया. न्यूमरेटर उसका भी डबल आ गया शायद तेरा. इसका आधा है आंसर. आई थिंक यू हैव ऑलरेडी डबल. लास्ट में इंटू 2 वापस से किया है क्या? कैसे किया? आई कैन चेक आउट. सर मैंने हाफ ए बी साइन थीटा, मैंने tan थीटा बाय 2 के बाद फिर साइन थीटा निकाला. हाँ. और फिर हाफ ए बी साइन थीटा के बजाय मैंने बस ए बी साइन थीटा कर दिया, इसलिए डबल हो गया. अच्छा. That is right, Vedant and Siddharth. Okay, now ये एक तरीका है. अगर ये तरीका अच्छा नहीं लग रहा है तो there is a formula also. ठीक है guys. मतलब और क्वेश्चन नहीं करवा रहा. I hope you understood this concept. Yes, sir. Yes, sir. Okay, next one.
लास्ट क्लास के एंड में और एक चीज किया था हमने, chord with given midpoint. Do you guys remember chord with given midpoint? Yes, sir. Yes. कैसे ढूंढते chord with given midpoint? टू सर पहले Sir, परपेंडिकुलर Sir, x1 plus y1 equal to x1 Yes. plus y. बोथ आंसर सर करेक्ट. एक सर्किल है, एक कॉर्ड है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है, इस कॉर्ड का मिड पॉइंट दे रखा है x1, y1. तो एक तरीका विथआउट फॉर्मूला अगर करना है तो व्हाट वी कैन डू इज सी और इस पॉइंट का स्लोप ढूंढ सकते हैं, उस स्लोप का परपेंडिकुलर स्लोप भी ढूंढ सकते हैं, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज कर सकते हैं. डू यू गाइस रिमेंबर दैट? I hope so, and that is right. Siddharth and जिसने भी बताया. Another equation of the chord is basically with given midpoint is given as t is equals to s1. ये फॉर्मूला लिखा हुआ है क्या? Yes, sir. I hope so, and this is the formula. T is equals to s1. T is equals to s1. जैसे कि एक क्वेश्चन करना है, एक दो क्वेश्चन करते हैं. इसके ऊपर शायद एक ही क्वेश्चन दिया था लास्ट टाइम, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द chord. हाँ sir. ठीक है, वो हमने वो वापस से नहीं करवा रहा हूँ या करवाऊं. तुम्हें कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तो आई कैन मेक यू सॉल्व इट. जल्दी जल्दी बता दो. सर हमने इसमें होमवर्क किया है. हाँ तो कंफर्टेबल हो ना इसमें. हाँ सर. ओके डन. फाइंड द मिड पॉइंट, find the middle point or midpoint of the chord. Find the midpoint of the chord intercepted. Find the midpoint of the chord intercepted on the line, lx plus my plus n equals to 0 by the circle x square plus y square equals to r square, sorry, a square. Find the midpoint of the chord intercepted by this line, intercepted on this line by this circle, intercepted on this line by this circle. Will you give it a try for 2 minutes? उल्टा है, chord का इक्वेशन दे रखा है और उल्टा मिड पॉइंट ढूंढने के लिए पूछ रहे. If chord equation has been given, they are asking you to find the midpoint on the contrary. आंसर आ गया तो बस बता दो, अगर टाइप करने में लंबा लग रहा है. Sir. हाँ हो गया. नहीं सर, आप बस एक बार परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट ऑन टू अ लाइन का फॉर्मूला बता सकते हैं? मतलब मुझे याद है सर, बस परपेंडिकुलर डिस्टेंस की फुट ऑफ परपेंडिकुलर. परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर चाहिए पॉइंट ऑन टू लाइन तो पॉइंट सब्स्टिट्यूट करेंगे, ax1 plus by1 plus c whole divided by root of a square plus b square. that is the formula for perpendicular distance. Sir, But do we need perpendicular distance here? no, sir. What do we need, Ibrahim? Foot of perpendicular. हाँ तो फुट ऑफ परपेंडिकुलर का भी है वैसे. हाँ सर, उसका याद है सर. सर ऐसे ही बता दूं क्या? हाँ जरूर. सर x is minus nl by l square plus m square. करेक्ट. Minus nm by l square plus m square. माइनस एन एम ही रहेगा वाई कोऑर्डिनेट भी. दोनों में भी माइनस आएगा. हाँ सर दोनों में माइनस. हाँ तेरा क्या था डाउट, तूने कुछ भेजा था? सर एक मिनट. Sure.
ये सब मॉड्यूल में उन्होंने क्वेश्चन दिया कि एक पॉइंट से टेंजेंट्स इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी सर्कल के ऊपर, तो फिर सर्कल का सी क्या होगा? एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स बनाए। हाँ सर, ऑन अ सर्कल, और सर्कल का सी ढूंढने बोला है। एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स तभी सर रहेगा जब वो सर्किल ना एक्चुअली पॉइंट सर्किल हो जाए। हाँ सर, वो कैसे होगा सर? अपने सेंटर से वही कैसे बनाएगा अरे टेंजेंट? ये फालतू सा समय है, बस मैं नाम के लिए बता रहा हूँ कि अभी ऐसा सर्किल छोटा सा हो गया मान ले, तो ये सारे टेंजेंट्स होंगे। हाँ सर। और छोटा कर दे, लेकिन एक पॉइंट ही कर दे उसको, उसको पॉइंट ही कर दिया तो टेंजेंट सारे टेंजेंट्स ये सारे लाइंस पासिंग थ्रू दिस पॉइंट टेंजेंट ही हो जाएगा ना। So तो सर diameter सेंटर भी ही सर्कमफरेंस है। हाँ वही इसीलिए बकवास क्वेश्चन है। एक तो पॉइंट को सर्किल नहीं बोलते और पॉइंट का टेंजेंट डजंट मेक सेंस, बट यहाँ पे इंटेंशन ऑफ द क्वेश्चन वही है कि क्या पूछा है, सर्किल का सेंटर पूछा है क्या? नहीं सर, सर्कल का सी निकालने वाला है, मतलब रेडियस को 0 करना है। हाँ जो भी है वही करना है, बट ये बकवास क्वेश्चन है, किसी ने मतलब बनाया है मतलब। ठीक है सर। इब्राहिम रिवर्स आनी करेक्ट है, सॉरी सिद्धार्थ करेक्ट है। ओके, कमिंग बैक टू दिस क्वेश्चन, हाउ टू सॉल्व दिस सम, व्हाट इज योर आइडिया? हाउ? सर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का इक्वेशन और सॉल्विंग लिम्स एंड ओके सो यू आर सॉल्विंग, मतलब लेट अस राइट मेथड्स की तरह सॉल्विंग टू लाइंस। एक है lx plus my plus n is equal to 0, the line itself. What is the other line with which you are solving is basically perpendicular from, अच्छा 0,0 से परपेंडिकुलर ड्रॉप कर रहे हो। 0,0 से परपेंडिकुलर मतलब y माइनस 0 इज इक्वल टू स्लोप यहाँ से मिलेगा, इसका स्लोप माइनस एल बाय एम है तो उसका स्लोप m बाय एल होगा इंटू x माइनस 0। तो इन दोनों को सॉल्विंग, परफेक्टली करेक्ट मेथड। एनी अदर अप्रोच, एनीबॉडी हु हैज डन? T equal to S1. क्या क्या? T equal to S1. T is equals to S1. So let midpoint be h comma k. Let midpoint be h comma k, which I need to find. So if the midpoint is h comma k, then the equation of the chord with given midpoint has to be T is equals to S1. T is equals to x1 मतलब S1 मतलब इस क्वेश्चन में x1 plus y1 is equals to x1 square plus y1 square. According to the question maker, it is the same as this line. It is the same as the given line, lx plus my plus n equals to 0. So all I'll do is I'll compare both the equations. If I compare both the equations, I'll get t equals to s1 में अच्छा x into h रहेगा अभी। कंपेयर कर रहे हैं तो h by l equals to k by m। समझ में आया ना बाकी लोग? तो समझ तो आया बट सेम आंसर नहीं आया। ओके, इसके बाद क्या करूं? नेक्स्ट स्टेप सर h by l is equal to k by m is equal to h let us do it calmly. h by l equals to k by m is equals to minus h square plus k square minus of h square plus k square divided by n। n. This is correct, perfectly correct। हाँ, तो अभी h और k ढूंढना है, h और k ढूंढना है। ओके, इन टर्म्स ऑफ l एंड m। ओके, तो राइट हैंड साइड माइनस एच स्क्वायर, राइट हैंड साइड को ना ये कुछ तो वैल्यू ले ले, इसको कोई तो वैल्यू ले लेते, लैम्डा ले लेते, टेम्पररी लैम्डा ले लेते। तो आई कैन से दैट h इक्वल्स टू l इंटू लैम्डा yes sir, एंड k इक्वल्स टू m इंटू लैम्डा। yes sir, लैम्डा l, k is equals to lambda m। okay, now also not only that, स्क्वायर एंड ऐड करता हूं दोनों को, क्योंकि h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर बाय n इज लैम्डा ना। okay sir, So like minus of h square plus k square divided by n is also lambda only. I'll just substitute this. तो क्या होगा? Minus of h square मतलब lambda square l square plus lambda square m square divided by n is equals to lambda। समझा क्या? yes sir, तो lambda का वैल्यू आ जाएगा, हाँ सर, तो रिली कैंसिल करके
minus n by l square plus m square. This is my lambda. तो ये lambda होगा तो h हो जाएगा lambda l और k हो जाएगा lambda m. समझा ना सॉल्विंग कैसे किया? आई होप सो. और किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? सर मैंने स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके -1 करके किया फिर solve. Correct. Fair enough. m1 m2 -1. Correct. So, or you can also do t equals to s1 and drop a foot of perpendicular from origin onto it. All the methods are correct, guys. सर बोलो. सर फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी यूज कर सकते हैं ना? हाँ हाँ, correct. Foot of perpendicular from center onto this. हाँ सर आगे. Correct. और किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? बस t equal to s1 की आदत डलवा रहा हूँ guys, और कुछ खास नहीं. और एक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट लुकिंग क्वेश्चन देता हूँ. ये एरेज कर रहा हूँ. किसी को डाउट है क्या इसमें? एकदम लास्ट में क्या किया वो जो कौन सा लास्ट मतलब? वो जो माइनस लैम्डा स्क्वायर एल स्क्वायर और प्लस लैम्डा स्क्वायर एम स्क्वायर, उसके बाद यहाँ यहाँ से लैम्डा कॉमन आएगा क्या? हाँ सर. तो राइट हैंड साइड लैम्डा से कैंसिल होगा. अच्छा हाँ ठीक है, ओके सर. तो लैम्डा का वैल्यू मिल गया. So therefore h equals to h lambda l मतलब minus n l upon l square plus m square. And k equals to lambda m मतलब minus n m. नंबर्स होते तो और इजी लगता क्वेश्चन. सर वो h² + k² कैसे है t = s1 पे? s1 क्या होता है? ओके T. सर, ओके सर. Write down one more sum. Okay, once again, one last time. Does anybody want some other explanation this sum? Okay, write down. Through a fixed point, h comma k, through a fixed point h comma k, secants are drawn to the circle x square plus y square equals to r square. Through a point h comma k, secants are drawn to the circle x square plus y square equals to r square. Secants are drawn to the circle x square plus y square equals to r square. Prove that the locus of midpoints of the portion of the tangents of the portions of secants, tangents बोला मैंने. Prove that the locus of the midpoints of the portions of secants intercepted by the circle is x square plus y square equals to hx plus ky. Is x square plus y square equals to hx plus ky. Give it a try.
Sir, HK is inside the circle or outside the circle? Assume that it's outside. Well, doesn't matter, but still assume that it's outside. Good one, Janvi. और कोई डाउट था क्या तेरा? हाँ सर। सर वो वाला तो सर मैं वैसे कैसे किया बता दीजिए, गलती क्या है? ओके अगर क्या सिचुएशन है? सर मैं अपना डाउट डिस्कस करूँ क्या? हाँ बता, बाकी लोग कुछ बात नहीं कर रहे तो। तो मैंने आपको जो क्वेश्चन नंबर 21 भेजा है उसको वो सॉल्व हो गया, बट उसमें एक अलग ही चीज आया सर कि जो स्लोप पॉइंट फॉर्म डाला जब, तो सर उसके 4 स्लोप आ रहे थे, मतलब जैसे अच्छा, पीए। हाँ अभी देखना, ये जो y इज इक्वल्स टू mx प्लस माइनस r रूट 1 प्लस m स्क्वायर जो है, ये वो टेंजेंट का इक्वेशन, सर्किल का टेंजेंट है गिवन द स्लोप। सिर्फ स्लोप Yes, sir. गिवन है तो सर्किल का इक्वेशन ऑफ टेंजेंट है। सिर्फ स्लोप गिवन है तो दो टेंजेंट्स आएंगे ना यार। हाँ सर। सिर्फ स्लोप गिवन है तो दो। अभी कोई पॉइंट है 2,3 जहां से दो टेंजेंट्स बना रहे हैं, और वो दो टेंजेंट्स के स्लोप्स मान ले, वो दो टेंजेंट्स के स्लोप मान ले मुझे मिल गए, मान लो 7 और 8 मिल गए दोनों स्लोप्स। तो वो इस फॉर्मूले में सब्स्टिट्यूट कर दूंगा m इक्वल टू 7 और m इक्वल टू 8, तो यू आर इंडीड फाइंडिंग 4 टेंजेंट्स। बट क्या हो ये गया। चारों के चारों 2,3 से पास कर रहे हैं? नहीं सर। नहीं ना, तो इसीलिए स्लोप मिलने के बाद वो इसमें नहीं सब्स्टिट्यूट करना, फिर स्लोप पॉइंट फॉर्म यूज करना, y minus 3 equals to m into x minus 2। हाँ हाँ ओके सर, ओके ओके ओके, अनिरुद्ध हो गया क्या? यस ओके, जानवी और अनिरुद्ध दो लोगों का हो गया। एनी थॉट्स? पहले तुम दोनों बता दो। वी हैव टू फाइंड लोकस ऑफ द मिड पॉइंट्स। पहले जानवी बताना। एक सर्किल है, फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। एक सर्किल है, इस सर्किल के इस सर्किल का कोई सीकेंट है और वो सीकेंट h, k से पास कर रहा है। एक सीकेंट नहीं, बहुत सारे सीकेंट्स है, इनफाइनाइटली मेनी सीकेंट्स है। उन सारे सीकेंट्स का एक मिड पॉइंट आएगा, उन सारे सीकेंट्स का मिड पॉइंट आएगा, या
इस मिड पॉइंट का लोकस ढूंढना है, दैट इज द क्वेश्चन। यस जानवी बताओ। तो बस t इज इक्वल टू s1 डाल देंगे तो फिर x1 y1 के टर्म्स में आ जाएगा। let midpoint, let us call this as method 1, let midpoint be क्या किया तूने, x1 y1। हाँ सर। What she has assumed is let the midpoint be x1 y1. Since midpoint is x1 y1, then equation of the chord with this midpoint, equation of the chord with given midpoint, equation of the chord with given midpoint is t is equals to s1. So t equals to x1 लिख देंगे, x1 plus y1 is equals to x1 square plus y1 square minus r square. And anything special about this chord? It passes through HK. Yes, it passes through h comma k according to the question. It passes through h comma k. तो h comma k substitute कर दूंगा तो hx1 plus ky1, xy की जगह पुट करना है, x1 y1 की जगह नहीं। hx1 plus y1 equals to, so we just found out a relation between x1 y1 and this is only the locus. Therefore locus is this thing, x square plus y square is equals to hx plus ky. Good one जानवी। अनिरुद्ध कैसे किया? सर मैंने मिड पॉइंट से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला और वही रेडियस होगा विद सेंटर और वो सर्कल बनेगा वही होगा। एक सेकंड, लेट अस कॉल द मिड पॉइंट एज m, सेंटर एज p, c एंड दिस पॉइंट एज p। हाँ, m से क्या किया? सी और एम का सी और परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला वो रेडियस हो जाएगा और विद सेंटर जो है 0, c एक सेकंड थोड़ा सा कम। ओके cm रेडियस किसका होगा? You और are जो saying लोकस का, क्योंकि उस लोकस एक ये होने वाला है, सर्कल होने वाला है विद सेंटर 0, एंड दिस इज द रेडियस। can you elaborate why? सर ऐसे वो बना के देखा तो वैसे सर्कल बन रहा था। ओके, मैं बना के दिखाता हूँ कि वो नहीं बनेगा ऐसा। अभी ये हो गया तो जीरो नहीं है ना, क्योंकि क्या क्या? सर वो सर्कल जो है उसका मिड पॉइंट ओरिजिन नहीं होगा क्योंकि h और k है, x और y के कोएफिशिएंट्स। मुझे समझा नहीं, लाइक आर यू काउंटर आर्ग्यूइंग हिज आर्गुमेंट? हाँ सर, हमें मिड पॉइंट ऑफ लोकस चाहिए, राइट? तो वो आया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू hx ky दे ही रखा है, तो सर वो तो कैसे भी ओरिजिन के थ्रू पास नहीं कर सकता ना, उसका मतलब सेंटर ओरिजिन हो ही नहीं सकता। हाँ, ये तो इसका सेंटर तो ओरिजिन नहीं है। वो शी सेइंग कि तेरे लॉजिक से आंसर कैसे आया अनिरुद्ध? यस, तो सोच रहे ओके, तो अनिरुद्ध के लॉजिक को अप्लाई कर सकते हैं डेफिनेटली गाइस। ये सी पॉइंट पता है क्या? 0, ओरिजिन। एम पॉइंट का लोकस ढूंढना है। एम पॉइंट को मैं मान लूंगा x1 y1। यहाँ पे he has observed that CM is perpendicular to MP. So any logic that you can use here? दोनों परपेंडिकुलर है तो क्या करेंगे? That is called as method 2. CM और MP परपेंडिकुलर है तो I can say that slope 1 into slope 2 should be -1. Agreed? यस सर। Slope 1 कितना है? कौन सी 9 की बात? y1 by x1. I don't know why is it taking so long. y1 minus 0 upon x1 minus 0. और slope 2 कितना है? h minus y1 h k minus -1 y1 upon h minus x1. इन दोनों का multiplication should be -1. Therefore, the locus is this. That's it. If you cross multiply, you'll end up with the same thing. समझा क्या method 2? Yes, sir. Okay. Just try to realize this also. जैसे कि अनिरुद्ध जैसे सोच रहा था, मुझे थोड़ा सा डायग्राम पहले ये दोनों लिख लोगे क्या फटाफट? जिसको लिखना है लिख लो फास्टली। लिख लिया। Is it the same with everybody? एक सेकंड सर।
आज भी मानसी एक एब्सेंट है. Do you know why she is absent? No, sir. And do you know anybody else absent today? Okay. Are you guys done copying this? Yes, sir. Yes, sir. ओके तो जस्ट फॉर विजुअलाइजेशन जो अनिरुद्ध विजुअलाइज कर रहा था उसको और थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ. तो अभी एक सर्किल है, एक सीकेंट बना रहे h कॉमा k से. h कॉमा k से एक सीकेंट बनाया, तो इसका मिड पॉइंट चाहिए, इसका मिड पॉइंट का लोकस चाहिए. ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया, ये एक पॉइंट हो गया. एक और सीकेंट बनाता हूँ. I'll draw an another secant. I'll draw an another secant passing to the same. तो उसका उस पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो एक और मिड पॉइंट आएगा. तो फिर से एक और सीकेंट बनाएंगे तो एक और मिड पॉइंट आएगा. ये सारे मिड पॉइंट्स, ये सारे मिड पॉइंट्स किसके ऊपर लाई करेंगे? दैट इज व्हाट द क्वेश्चन इज. एक और सीकेंट बना है, यहाँ पे भी परपेंडिकुलर. ये सारे पॉइंट्स क्या ऐसे डायमेट्रिक फॉर्म पे लाई करेंगे? ये सारे पॉइंट्स इस 0 0 और h कॉमा k के डायमेट्रिक फॉर्म पे लाई करेंगे क्या? यस सर. क्यों? सर 90 डिग्रीज. 90 डिग्री से तो एंगल इन सेमी सर्कल 90 डिग्री होगा ना. तो आई कैन से माय लोकस, जिसका मिड पॉइंट का लोकस ढूंढना है, दैट विल लाई ऑन द सर्किल विद 0 0 एंड h कॉमा k एज डायमेट्रिक एंड्स. डू यू गाइस रिमेंबर 0 0 h k का डायमेट्रिक फार्मूला कैसे लिख दूं? Sir, x minus h plus h y. minus h into x minus 0, हाँ, plus y minus k into y minus 0 is equals to 0. इसको expand करेंगे तो you'll get x square plus y square equals to hx plus ky. This is the same answer. But do you realize that it is diametric form? मतलब Yes, sir. चलेगा. This is the same thing. Second method का ही थोड़ा सा different way to perceive it. Well, first method is what I'm trying to focus mainly, guys. अगर midpoint given है तो equation of the chord अगर आए तो t is equals to s1 यूज करो. अभी तक जो हमने पढ़ा था s1 और t के ऊपर, they're just shortcuts to give lengthy formula. Length of tangent का फॉर्मूला था root s1. Equation of tangent था, equation of tangent का फॉर्मूला था t is equals to 0. और midpoint वाला chord with given midpoint का फॉर्मूला होगा t is equals to s1. ओके, ये तीन चीजें करी थी. और एक भी किया था, पेयर ऑफ टेंजेंट्स. याद है क्या पेयर ऑफ टेंजेंट्स गाइस? T square is equal to SS1. t square equals to ss1. t square equals to ss1 is the pair of tangents. Is that also clear for everybody or should I discuss that part also? तो क्लियर है. किसी को भी डाउट है क्या t square equals to ss1 का? ठीक है सर एक बार बता दो, अच्छे से याद नहीं बट हाँ कुछ कराया था एकदम एंड में क्लास के. ओके, ये लिख रहे हो क्या जो बोर्ड पे लिखा है? नहीं सर, हो गया. ओके, एवरीबॉडी इन द क्लास? ओके, कोई क्वेश्चन? अच्छे नंबर्स वाला क्वेश्चन बनाना भी थोड़ा मुश्किल है. ओके, जस्ट अ मिनट. Find the equation of the tangents. Find the equation of pair of tangents. Find the equation of pair of tangents. Pair of tangents. Find the equation of pair of tangents from the point A 3,2, from the point A 3,2 to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 is equal to 0. Find the equation of the pair of tangents from the point A 3,2 to the circle x square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 is equals to 0. This is the question. Okay,
I don't want you to solve it. I just want you to follow the solution. Just follow the solution. Before following the solution, can you give me your thought process or your approach? सर टी स्क्वायर इज इक्वल टू SS1 और ये डाल देंगे पॉइंट. That's correct, Janvi. Any other method? Anybody? उनके इक्वेशन ढूंढ के उन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे. इनके इक्वेशंस कैसे ढूंढूं? So like जैसे वो स्लोप फॉर्म वाला की y is equal to. Correct. Slope form वाला. If I say method 1, slope form वाला. Can you tell me slope form वाला कैसे assume करूं? Let equation of tangent be. कैसे assume करेंगे equation of the tangent? कोई भी बता सकता है क्या? Slope form, anybody? y plus 3 is equal हाँ, y minus y1 होना चाहिए. Thank you, अपुर. y minus y1 होना चाहिए. y1 मतलब सेंटर का y कोऑर्डिनेट. इसका सेंटर क्या है? -2, -3. -2 -3. तो स्लोप फॉर्म का इक्वेशन होगा y minus y1 मतलब y plus 3 is equals to, can you help me out? क्या होगा? X plus 2 into m plus minus. अपर्णा, m into x plus 2 plus minus radius. Can you find the radius orally? Root of 4 plus 9 minus 8. √5. Thank you. Root 5 into root of 1 plus m square. पहले ये लिखना आना चाहिए. Is this clear with everybody in the class? यस सर. yes sir. Okay. फिर क्या करते हैं? So एक पार्ट को उस तरफ लेके जाके स्क्वायरिंग बोथ साइड. हाँ, लेकिन xy भी तो है. सर ए पॉइंट को सब्स्टिट्यूट कर. A के पॉइंट A के points, because we are finding the tangents which are passing through the point A. A 3,2 सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो m में क्वाड्रेटिक आएगा. ये वाला क्वेश्चन सॉल्व मत करो, बट स्टिल m का वैल्यू दो वैल्यूज आ गए, हाफ और 2. फॉर एग्जांपल हाफ और 2 आ गए तो फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट कैसे मिलेगा? पॉइंट स्लोप. स्लोप पॉइंट फॉर्म. तो y minus 2 is equals to half into x minus 3. एक होगा, दूसरा होगा y minus 2 is equals to 2 into x minus 3. These are the two lines. If I ask you to find pair of tangents, then how would you do? Multiply both of. Multiply. Multiply Should I both of them. multiply directly like this or some? एक साइड लेके जाके उस साइड हाँ, में. सब एक साइड लेके आके इक्वल टू 0 करके मल्टीप्लाई करना है. That would be the answer. ये मेथड समझे ना? Yes. मेथड 2 Sir, डायरेक्ट yes, फॉर्मूला sir. था. डायरेक्ट फॉर्मूला था t square is equals to ss1. मेथड 2 डायरेक्ट फॉर्मूला था t square is equals to ss1. I just want you to remind you t मतलब x square को लिखेंगे xx1. जैसे कि ये वाला x square क्या बन जाएगा? x into X 3. 3 x into 3 plus y into 2 plus 4x को क्या लिखेंगे? -2 times x. -2 क्यों? Sorry, +2. Plus 2 times x plus 3 plus again 3 times y plus 2 plus 8 का होल स्क्वायर t square is equals to s मतलब ये पूरा कर्व x square plus y square plus 4x plus 6y plus 8 into s1. s1 मतलब 2,3 पुट कर देंगे वैल्यू, समझा ना? सॉरी 2,3 बोला, 3,2. तो 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कितना हो गया? 9 plus 4 13 plus 12 25 plus 12 plus 8 45. सो ये जो इक्वेशन आया इसको पूरे को स्क्वायर करेंगे तो हमें पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिलेगा गाइस. पेयर ऑफ टेंजेंट्स मिलेगा. जैसे कि ये वाला क्वेश्चन किया हुआ है तो मैं जस्ट लिख रहा हूँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आई गेट समथिंग लाइक 2x square plus 2y square minus 5xy minus 2x plus 7y minus 4 is equals to 0. This is the pair of tangents. Agar if I ask you to find individual tangents, how would we do that? इसको फिर फैक्टराइज करेंगे. Do you guys remember how to factorize pair of straight lines? यस सर. इसको फैक्टराइज करेंगे तो फिर हमें ये दो इंडिविजुअल लाइंस मिल जाएंगे. So these are the two methods of finding pair of equations. Just have a glance at the options. अगर options में pair of tangents ही दे रखा है तो this would be a faster method. Options में अगर individual tangents दे रखा है तो second one would be a better method. अगर तुम लोगों को एक ही method सीखना है तो this one individual tangents सीखना more better है. उससे बहुत सारी चीजें और भी मिल सकती है.
मतलब ये हमें वापस फैक्टर्स करने का झंझट नहीं है. ओके, इज दिस क्लियर? जिसको डाउट था टी स्क्वायर इक्वल टू SS1 वाला. यस सर, हम लोग सर्कल बना के कॉर्ड की तरह ट्रीट कर सकते हैं टेंजेंट्स को. सर्कम सर्किल ऑफ व्हाट? सर डायमेट्रिक एंड सेंटर और ए. सेंटर और ए को ज्वाइन करके सर्किल बना दिया. यस इसमें सर. क्या करूं? और हम लोग पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ढूंढ सकते हैं और उसमें पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट क्या होगा फिर? तब पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन हो जाएंगे फिर. 1 सेकंड फिर से सोच के. तुम्हें क्या लगता है कौन सा इजियर है? सर मेथड 1. ओके, जस्ट फॉलो योर हार्ट गाइस, इतना मत सोचो. तुम्हें लग रहा है ऐसे कर सकते हो तो जस्ट गो फॉर इट. सर एक चीज पूछनी थी, जैसे जो भी लाइक हम फॉर्मूला कर रहे हैं अभी अकॉर्डिंग उसके प्रूफ्स इंपॉर्टेंट होते हैं कि नहीं, सिर्फ फॉर्मूला याद रखना? नहीं, नॉट एट ऑल इम्पोर्टेंट, जीरो इम्पोर्टेंस है. ओके सर. सर किसका 0 इम्पोर्टेंस है? डिराइवेशन ऑफ द प्रूफ. स्पेशली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का डिराइवेशन तो सबसे लीस्ट इम्पोर्टेंट है, because coordinate geometry is not there in this 12th standard HSC and all, and also Olympiad वगैरह में भी ये सब नहीं है coordinate geometry and all. Okay, are you guys done or do you need more time? ओके सर. ओके, चलेगा. अभी थोड़ा सा नया पढ़ेंगे हम लोग. एक्चुअली लास्ट क्लास का ही सॉर्ट ऑफ एक्सटेंड करके डिस्कस कर रहे थे वेरियस थिंग्स. द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज आल्सो क्वाइट इजी बट स्टिल आई एम erasing this one last time. I am asking if anybody wants to interrupt, now is the time. हो गया सर. Okay, now we will move on to, till now we have been doing a line and a tangent. The line can be a chord, the line can be a tangent or a secant, or I'm sorry, till now we are doing a line and a circle. So circle और line intersect करेंगे नहीं करेंगे, circle will not intersect and will pass away and all. Now we will slowly move on to circle and a circle. Circle and a circle, तो two circles और system of circles के बारे में discuss कर रहे हैं. We'll slowly start system of circles. तो इन सिस्टम ऑफ सर्कल्स सबसे पहले दो सर्कल्स मतलब दो सर्कल्स कैसे कैसे सिनेरियो में एग्जिस्ट कर सकते हैं तुम लोग ये समझो. दो सर्कल्स दे कैन बी फार अवे, और कैसे सिनेरियोस हो सकते हैं? They can touch each other at one point. Then touch each other at one point. They can intersect each other. Or any other scenario? Concentric. Concentric हो सकते हैं. Correct. Okay. Now there are two names. एक तो common tangent है नाम. Is that name self-explanatory? Yes sir. Yes sir. Common tangent. And there are two further bifurcations: direct common tangent and transverse common tangent. तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट एंड ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट मतलब डीसीटी टीसीटी जैसे बुलाते हैं स्टूडेंट्स. डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट मतलब ऐसा टेंजेंट जिसके दोनों सर्कल्स एक ही साइड हो, that is called as direct common tangent. And of course the other one will be transverse common tangent. Transverse common tangent मतलब विजुअलाइज हो रहा है? Yes. Is the transverse common tangent. मतलब इस टेंजेंट के एक साइड सर्किल एक साइड है, दूसरा दूसरे साइड है. ओके, हाउ टू, अगर मैं तुम लोगों को ये लाइन का इक्वेशन दे दूं, कैन यू गाइस आइडेंटिफाई if it is a transverse common tangent or a direct common tangent? Yes, sir. How should we identify? So because they lie either on the same side or opposite the side. opposite side. How do you know if they lie on the same side or opposite side? Sir, by substituting the centers of the Yes, circle. substitute the centers in the line. If you substitute the points in the line, if they give the same sign, then they will be on the same side. ये सबको याद है ना? हाँ सर. Centers put करो, opposite value, opposite signs होगा तो opposite side.
ओके, तो फर्स्ट मोस्ट फंडामेंटल थिंग ये करेंगे, टोटल कॉमन टेंजेंट्स, सीटी मतलब कॉमन टेंजेंट्स। अभी सिनेरियो भी चाहिए मुझे और कंडीशंस भी चाहिए। सबसे पहले द मोस्ट इजीएस्ट सिनेरियो टू एनालाइज इज टू सर्कल्स आर फार अवे, टू सर्कल्स आर फार अवे। तो कैन यू गाइस विजुअलाइज हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल? 4. 4 टोटल कॉमन टेंजेंट्स आर पॉसिबल। 4 दिख रहे हैं क्या या बनाना पड़ेगा? दिख रहा है सर। दिख रहा है सर। 2 दिख रहे हैं सर। ठीक है, 1 2 ऐसे हो गए और 2 इस साइड हो गए। अच्छा, कितने डायरेक्ट, कितने ट्रांसफर्स? 2 दो, direct, दो। 2 Two common. direct, two 2 transfer. and 2 है। Okay. अच्छा, now if I ask you a mathematical condition for this, mathematical condition मतलब how will you know if these two circles are not intersecting, not touching? Is you use the Distance fact between of the center is greater than the combined radius. correct distance between the centers। इसका सेंटर C1, इसका सेंटर C2 मान लो अगर, तो C1 C2 का वैल्यू दोनों रेडियस के एडिशन से भी ज्यादा होना चाहिए। C1 C2 का वैल्यू दोनों रेडियस के एडिशन से भी ज्यादा होना चाहिए, तब दे विल बी फार अवे, वाइड अपार्ट। सो नेक्स्ट सिनेरियो, if both the circles are touching each other, if both the circles are touching each other externally, they are touching externally, understand that word externally, they are touching externally. So can you tell me first relation? C1 C2 equal to C1 R1 C2 plus R2. equals to R1 plus R2. C1 C2 is equals to R1 plus R2. What about these three? 3 2 और 1। कॉमन टेंजेंट 3 रहेंगे, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट 2 रहेंगे और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 1 रहेगा। कैन यू विजुअलाइज हियर हाउ द ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट विल बी? Vertical. Yes, sir. It is perpendicular to the line joining both the centers. Also, can you tell me ये जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है कितने रेशियो में डिवाइड करेगा दोनों सेंटर्स को? R1:R2. R1:R2 ऑब्वियसली चलेगा। ये लिख लेना बोर्ड पे फटाफट। सर हम ऐसे भी पता कर सकते हैं ना डायरेक्ट है कि वो कि द लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स शुड बी इंटरसेक्टेड बाय द टेंजेंट, तो ट्रांसवर्स हो गया, नहीं हो रहा है तो डायरेक्ट है। या करेक्ट। लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स के बारे में बात नहीं करते बिकॉज लाइन जॉइनिंग द सेंटर्स को एक्सटेंड भी कर सकते हैं, एक्सटेंड करके फिर वो मीट कर जाएंगे। हाँ सर, बिटवीन द सेंटर्स इट शुड मीट, तो फिर ट्रांसवर्स होगा। हाँ वो थोड़ा, या फिर वही उतना झंझट सोचने से अच्छा पॉइंट डाल दो, सेम साइन ऑपोजिट साइन। बाकी गाइस तुम लोगों की तबीयत वगैरह ठीक है ना आजकल? हाँ सर। Yes. और जानवी तेरी फ्रेंड ने छोड़ दिया आईटी सब? तो श्रीजिता हाँ सर, किसने कहा मेरी फ्रेंड थी वो? मुझे लगा तेरी और तूने फ्रेंड बोलती, तूने उसका नाम गेस किया तो फिर। सर हम बहुत फाइटिंग करते एक दूसरे से। ओ हाँ, बेस्ट फ्रेंड्स ऐसे करते मैंने सुना। सर ऐसे ना चिढ़ाए सर। She wrote a message in the group ना? Yes sir. वेल हो गया क्या ये? नो सर। Yes sir. sir. ओके अपर्णा जल्दी करो जानवी। और बाकी ईशान, पर्व तो कितना रेयरली बात करता है। चीनार, हरलीन, हेमंगा, जयराज फॉलो कर रहे हो क्या? मुस्कान, Yes sir. ओजल, प्रभास, प्रथमेश, पृथ्वी, Rishit, Sanvi also. You used to talk a lot, now you don't talk much. Pegasus. सबको हो गया everybody? नो सर। Yes, sir. नेक्स्ट तुम लोग इमेजिन कर लो, व्हाट डू यू थिंक नेक्स्ट सिनेरियो रहेगा? If circles Touching touch internally. टचिंग इंटरनली के पहले एक इंटरसेक्टिंग वाला भी कर लेते हैं। एक इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों सर्कल्स, और एक सिनेरियो रहेगा
कि टच कर रहा है इंटरनली, करेक्ट, ये दोनों सिनेरियो से। तो कैन यू टेल मी सेकंड वाला इंटरनली टचिंग का क्या रहेगा कंडीशन? C1 C2 less than R1 plus R2. हाँ, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स लेस देन R1 plus R2 is correct. Can you be more clear? It's not nicely put. Equal to R2 minus R1. So the mode of R2 हाँ, minus R1. दोनों में से जो भी बड़ा रहेगा, सही कह रहे हो। दोनों सर्कल्स के बीच का, सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस जो है वो बड़ा रेडियस माइनस छोटा रेडियस रहेगा। C1 C2 should be R1 minus R2 with a modulus. Is this clear? सर मैं इंटरसेक्टिंग वाले के लिए बोल रहा अच्छा अच्छा, इंटरसेक्टिंग वाले के लिए अभी बता सकते हो क्या? हूँ। हाँ सर, बताओ। C1 C2 less than R1 plus R2. C1 C2 लेस देन R1 प्लस R2 तो इस केस में भी होगा और उसके नेक्स्ट केस में भी होगा, हाँ सर, दोनों में भी होगा, इज व्हाट आई एम सेइंग। सो दैट्स नॉट ओके सर। एक्यूरेट पिलाई। नेक्स्ट क्या होगा फिर? C1 C2, इज दिस एनफ गाइस? आर यू गाइस अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? It should be more than R1 minus R2 also. You got this? हाँ सर, ये वापस समझा। Distance between the centers 0 हो गया तो क्या होगा? सेम होंगे, क्या होगा? You mean concentric होंगे। Concentric. तो अगर C1 C2 less than R1 plus R2 है तो does it mean they should intersect? हाँ सर। नहीं ना, जैसे कि दोनों सर्कल्स कॉन्सेंट्रिक हो गए तो भी C1 C2 क्या लेस देन R1 प्लस R2 है? अच्छा हाँ ठीक है सर, समझा तो भी लेस देन R1 प्लस R2 है। तो C1 C2 ना इतना भी पास नहीं होना चाहिए कि वो एक सर्किल दूसरे के अंदर ही चला गया। समझा क्या? हाँ सर, समझा। सफिशिएंट कंडीशन है। हाँ हाँ, सफिशिएंट नहीं है। ओके, नेसेसरी है बट सफिशिएंट नहीं है। सही कह रहा है, नाइस नेम्स। ओके, तो कैन यू, तो ये जो ना इंटरसेक्ट अगर करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स लेस देन R1 प्लस R2 नहीं, दैट शुड बी मोर देन द डिफरेंस ऑफ द रेडियाई। इज दिस क्लियर नाउ एवरीबॉडी? यस सर। यस सर। ओके, कैन यू कंप्लीट दिस? कितने कॉमन टेंजेंट्स रहेंगे सर Two. कितने रहेंगे? दो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स, 2. 0। ये केस में 1. 1. 1 और डायरेक्ट है कि वो 1. ट्रांसफर से डायरेक्ट। डायरेक्ट ही है बिकॉज दोनों सेंटर्स एक ही साइड लाइक कर रहे हैं। और ट्रांसफर 0। और कोई सिनेरियो हो सकता है क्या? कॉन्सेंट्रिक, कॉन्सेंट्रिक, करेक्ट, कॉन्सेंट्रिक इज करेक्ट। और एक सिनेरियो हो सकता है नॉट कॉन्सेंट्रिक एंड दिस सर्किल इज इनसाइड। समझे क्या? हाँ सर। कैसे पता चलेगा? तो सेंटर सेम है तो यस, सेंटर सेम है तो या C1 C2 0 होगा तो कॉन्सेंट्रिक होगा। और इस केस में C1 C2 is less than R1 minus R2. yes, C1 C2 is further less than R1 minus R2 but it should be more than 0. Of course it can't be 0. Did everybody understand this? यस सर। ओके, लिखना है तो लिख लो फटाफट। ये सब लॉजिक है यार, एक ही बार फॉर्मेलिटी के लिए बता रहा हूँ, फिर उसके बाद तुम लोग रटना नहीं है, तुम लोग दिमाग लगाओ एग्जाम में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स कितना होना चाहिए करके। हाँ सर। These are things, they are too easy, you should not by heart them. अभी बस मुझे आज के क्लास में और ये डिस्कस करना है कि कॉमन टेंजेंट्स कितने हैं वो तो आइडेंटिफाई करने लग गए। फिर सेकंड पार्ट है कि अगर कॉमन टेंजेंट है तो उसका लेंथ कैसे ढूंढना है, उसका लेंथ। सर ये जो Next. नीचे के दो है उनमें तो कोई कॉमन टेंजेंट नहीं है ना? यस, देयर इज नो कॉमन टेंजेंट टू बोथ ऑफ देम। जल्दी लिख लो, लिख के बताओ। सर लिख लिया। एवरीवन डन? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट पार्ट। अभी थोड़े बुक्स में ना ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट को एक्सटर्नल कॉमन टेंजेंट बुलाएंगे और मतलब और इंटरनल करके बुलाएंगे, विच अवॉइड करेंगे। दैट इज नॉट ए गुड वे टू रिप्रेजेंट देम, एक्सटर्नल टेंजेंट इंटरनल टेंजेंट करके। वेल, नेक्स्ट साइड हेडिंग इज दिस लेंथ ऑफ
direct common tangent. This is what we are formula which we are deriving. Once again, guys, the formula is not so important, but the result is more important. दो tangents है, and both, let us hypothetically assume, and we are given few things. We are given radius 1, center 1. We are given radius 2 and center 2 also. दोनों को join करता हूँ. My task is to find the length of the direct common tangent. So there is a So I am interested in finding this length. Question समझ में आया ना everybody? What is the length of the direct common tangent का meaning क्या है? Yes, sir. यहाँ पे Yes. from में point नहीं है, दोनों का common tangent है, तो इस common tangent का length मतलब दोनों points of contacts, respectively points of contacts के बीच में length है. Okay, now what we will do is यहाँ पे कोई angle पता है क्या? सर पता कर सकते 90 degree. पता ही है, दिख रहा है 90 साफ साफ. ठीक है, तो यहाँ पे ना ये C1 C2 के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूं मैं. C1 C2 के पैरेलल एक लाइन बना रहा हूं जो वन ऑफ द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से पास करेगा. लेट मी ड्रॉ दैट मच पार्ट. C1 C2 के पैरेलल एक लाइन बनाया 90 डिग्री से. अच्छा, तो मतलब ये वाला लाइन, ये डॉटेड लाइन मैंने यहाँ वापस से बनाया. तो कैन यू टेल मी, ये लेंथ हमें ढूंढना है, L मान लेता हूँ. कैन यू टेल मी व्हाट विल बी दिस डिस्टेंस, दिस डॉटेड डिस्टेंस? वो तो C1 C2 रहेगा, डिस्टेंस बिटवीन बोथ दी सेंटर्स. ये सेम ही रहेगा, ये समझ आ रहा है ना सबको? Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. ये लेंथ कितना होगा? R1 R1 R1. R1 minus R2. यस, ये पूरा R1 है. हमने कौन सा ट्रायंगल बनाया समझा क्या? A B और M. R1 minus R2. Yes, A B M का ट्रायंगल बनाया हमने. तो ये डिस्टेंस R1 minus R2 होगा. Everybody, are you guys understanding? yes Yes, sir. Yes, sir. Can you tell me पाइथागोरस थ्योरम L क्या होगा? C1 C2 square minus R1. Yes. C1 C2 का square will be the hypotenuse. C1 C2 का square, let me call it as D का square. Just C1 C2 confuse ना हो जाए. D का square minus R1 minus R2 का square. This is the length of the direct common tangent. D square minus R1 minus R2 का square. This is the formula that you are supposed to remember. Write it down. सर हम लोग पूरा निकाल सकते हैं, पूरा लेंथ का चैनल जो कि C1 पूरा- C2 से जो लाइन पास कर रही है, तो और AB जो लाइन है, दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल सकते हैं और हम लोग फाइंड कर सकते ये पॉइंट अगर निकल गया ना, तो इस पॉइंट से लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन टू द फर्स्ट सर्किल माइनस लेंथ ऑफ टेंजेंट ऑन टू द सेकेंड सर्किल, रूट S1 माइनस रूट S1 करके भी कर सकता है. बट आई हैं. एम हम लोग क्यूरियस, निकाल सकते हैं वो, क्योंकि ये एक्सटर्नली पॉइंट निकाल सकते हैं क्या? पूछ रहा है कि बता रहा है? सर बता रहा हूँ. ओके, यस, ये पॉइंट ढूंढ सकते हैं. करेक्ट. It will divide, like you said, it will divide in the same ratio. Are you guys done writing this? Length of direct common tangent. तुम्हें क्या लगता है वैसे देख के, सोच, जस्ट डायग्राम देख के फील से बताओ, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट का लेंथ बड़ा रहता है कि ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट का? डायरेक्ट. So transverse. Transverse. ट्रांसवर्स बड़ा लग रहा है कि डायग्राम से? हाँ सर, ट्रांसफर बड़ा लगा. हाँ सर. कैसे? डायग्राम से. जैसे वो तो है, बट जैसे कि ये है, ये रेड सेगमेंट बड़ा है कि ब्लू सेगमेंट बड़ा है? रेड. सर दोनों सर सेम अभी लेंथ के दिखाओगे तो होंगे. ब्लू दिखाई दे रहा है. सर दोनों सेम लेंथ के Maybe हैं. my diagram Sir, blue segment my बड़ा diagrams are लगा. not so good. ठीक है. सर एक्चुअली कौन सा बड़ा रहता है? क्योंकि मैं आर्यन से एग्री करता हूँ कि जैसे अब ब्लू वो दोनों टेंजेंट्स है फ्रॉम पॉइंट बी, तो सेम रहेंगे. क्या
सेम रहेंगे? नहीं नहीं, सेम तो नहीं रहेंगे। सर Okay. अगर वो टच कर रहे तो एक पॉइंट ही हो जाएगा ना। हाँ हरलीन, स्मार्ट आंसर। तो हरलीन ने ऐसा सिनेरियो ले लिया जिसमें ट्रांसफर्स गायब भी हो गया, मतलब ये दोनों सर्कल्स को पास लेके आ गई, तो ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट छोटा रहेगा ना। हाँ सर। इनफैक्ट वैसे सर वो हर डायरेक्ट के लिए सेम ही रहेगा। हमेशा डायरेक्ट बड़ा रहता है। ओके सर। ये कैजुअल डिस्कशन था, बट वो इधर है। अगर अगर मुझे ये डायग्राम एरेस कर दूं क्या? सर कर लो। हाँ बोलो। सर मैं कह रहा हूँ कर लो एरिस कर लो। अच्छा, आप कर लो, बोल रहे हैं, मुझे लगा हेलो। ओके, लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट ढूंढना है। लेंथ ऑफ ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट, पहले एक डायग्राम बना लेते हैं, एक ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट भी बना लेते हैं। Now this time what we'll do is we are interested in this length. We are interested in this length. Okay, ये R1 है और ये R2 है, and distance between the centers हमें पता है, distance between the centers पता है। This time what I'll do is I'll draw another line. I'll draw another line passing through the center and parallel to this transverse common tangent. I am passing through the center and parallel to it. I am parallel to it. ठीक है, तो parallel to it, so let us call this center as C1, this center as C2, and we'll drop a perpendicular. ये point A, B, ये point P. Okay, तो इस डायग्राम में C1 P C2, ये वाला डायग्राम नोटिस कर रहा हूं। इसमें कैन आई से दैट PC2 विल बी आवर रिक्वायर्ड लेंथ? यस मतलब ए बी के पैरेलल है, ठीक है। और C1 C2 हमें पता है डिस्टेंस D है, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स। और C1 P पता है क्या? C1 P R1 plus R1 R1 plus R1 R1 plus R2 ऑब्वियसली R1 plus R2। तो L क्या होगा इस क्वेश्चन में? पाइथागोरस थ्योरम, d square minus r1 plus r2 रूट ऑफ D square minus R1 plus R2 the whole square, D square minus R1 plus R2 the whole square. This is the length of transverse common tangent. Once again, geometry and derivation is not so important, but this is the answer. बोलना अनिरुद्ध? इससे भी बता सकते हैं कि ट्रांसफर छोटा होगा। Yes, इससे भी बता सकते हैं ट्रांसफर छोटा रहेगा, because D square minus पॉजिटिव, मतलब R1 plus R2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, तो पिछले वाले में R1 minus R2 सब्ट्रैक्ट हो रहा है। So in fact डायरेक्ट बड़ा रहेगा, वो याद रखो, उसके चक्कर में फॉर्मूले याद रखना भी इजी है। डी स्क्वायर माइनस बड़ा चीज सब्ट्रैक्ट हो रहा है तो वो छोटा वैल्यू ट्रांसफर्स का हो जाएगा फिर। ओके, आर यू गाइस डन कॉपिंग दिस? टू डू लेट मी No, sir. या डू लेट मी नो। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कॉर्ड ऑफ कॉन्टैक्ट पे थोड़े क्वेश्चंस करेंगे और फिर फैमिली ऑफ सर्कल्स करेंगे। फैमिली ऑफ सर्कल्स, दैट इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस थिंग। पोल एंड पोलर, पोल पोलर जो है, आई विल मेंशन इट इन योर क्लास बट आई विल नॉट सॉल्व इट अ लॉट। आई विल मेंशन इट एनफ सो दैट यू कैन हैंडल इट। इट इज नॉट देयर इन जेईई पोर्शन नाउ, so that has been removed, so उसके ऊपर ज्यादा मतलब बता दूंगा तुम्हें बस। पोल पोलर, conjugate points, coaxial circles, conjugate lines, ऐसे करके थोड़े वर्ड्स है, ये सारे नहीं है जेईई पोर्शन में। क्या हुआ? लिमिटिंग पॉइंट्स, लिमिटिंग पॉइंट ये सब नहीं है। यस, इनवर्स पॉइंट ऑफ ए सर्कल विद रिस्पेक्ट टू सर्कल, ऐसे बहुत सारे चीजें हैं। ऑफ कोर्स ये एरेज कर दूं?
Okay, sir. Yes, sir. Okay. Now, last part of this common tangent, I am not going to give you question, find the length of direct common tangent, find the length of transverse common tangent. That will be in homework. That is for you to do it yourself. Okay. Next question. Next question. I am not interested in the complete solution. I am interested in the approach which you guys are giving. Okay. Give it a thought for 2 minutes. Give it a thought for 2 minutes. Find. This is the last part of common tangents. Find equations of all the common tangents. Find the equations of all the common tangents to the circles x square plus y square minus 2x minus 6y plus 9 equals to 0 and x square plus y square plus 6x minus 2y plus 1 equals to 0. 2 मिनट सोचो या 5 मिनट और कैसे करना है ये सोचो. सब पता है. ओके ओके जस्ट अ मिनट. किसने अनिरुद्ध ने बोला? 2 मिनट. तो अगर पता है तो इक्वेशंस ढूंढ भी सकता है क्या? Yes, sir. लोग सॉल्व करो. I'll just come back in 5 minutes guys.
तो बेसिक समझ गया सर कि वो इंटरसेक्ट नहीं कर रहे हैं और 2 DCT है, बट उसके बाद क्या करना है सर? हाँ हाँ यही तो क्वेश्चन है। तो 2 कंडीशन डाल दिया बट तीसरा नहीं मिल रहा। नहीं ये थोड़ी क्वेश्चन है कि कितने टेंजेंट्स पूछा है, ये क्वेश्चन क्या है, इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट्स पूछा है। हाँ सर, वो ABC जो होंगे x y और कांस्टेंट सर, उनके लिए 3 इक्वेशन चाहिए ना। सर बहुत लेंदी है। हाँ हाँ तो तुम लोगों को जो स्ट्राइक हुआ वो लेंदी होगा। आई एम जस्ट क्यूरियस कि कैसे करना है। आई विल ऑफ कोर्स दिखाऊंगा। डू शुड आई डिस्कस इट नाउ और डू यू गाइस नीड वन मोर मिनट? जस्ट अपने जो भी दिमाग में थॉट्स आ रहे हैं जस्ट उसको ऑर्गेनाइज करो, दैट इज ऑल आई एम आस्किंग यू टू डू। किसी को क्वेश्चन में डाउट है क्या? एनीबॉडी इन द क्लास? नहीं सर, क्वेश्चन में डाउट। ओके नाउ इसको सॉल्व करते हैं। पहले क्वेश्चन सर्कल्स के इक्वेशंस से अच्छा सर्कल्स का डायग्राम बना के इक्वेशन का इनपुट कर देते हैं। सबसे पहले व्हाट डू यू थिंक फर्स्ट सर्कल का सेंटर क्या है? 1 3 1 3 एंड रेडियस 1 क्यों? और सेकंड सर्कल का रेडियस कितना है? 3 3 बड़ा है -3, 1। सर डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स का वो इंटरसेक्शन, सॉरी ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट्स का इंटरसेक्शन वो रेशियो में होगा सर्कल्स के। यस दैट उसमें इज मैंने करेक्ट, find out कर- दैट इज करेक्ट। फिर उसके बाद अनिरुद्ध तो उससे मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस फॉर्मूला से m1 m2 के 2 स्लोप्स आए और उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो अज्यूम Correct. किया था लाइक क्या आ रहे स्लोप्स? वही कर रहा हूँ, बहुत अजीब। ओके तो वो मैं करके दिखाता हूँ। फिर सबसे पहले सेंटर रेडियस ढूंढना तो ऑब्वियस है। आर द टू सर्कल्स टचिंग ईच अदर और नॉट टचिंग ईच अदर? नॉट टचिंग। Not touching. Is it self-explanatory? Everybody in the class? यस सर, वो Distance between the centers जो रेडियस के एडिशन, जैसे कि इस क्वेश्चन में डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स आ रहा है रूट ऑफ 20 आ रहा है शायद, जो कि 4 से ज्यादा है। 3 + 1 4 से ज्यादा है, so they are not touching each other. Okay, now first thing सबसे पहले कितने डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स रहेंगे वो तो क्लियर है क्या? यस सर। 2 डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स है। तो व्हाट अनिरुद्ध का मेथड है, लेट अस कॉल दिस एज मेथड 1। अनिरुद्ध का मेथड जो है वो ये कर रहा है कि ये जो दोनों डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स जो मिल रहे, सॉरी ये ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट बना दिया मैंने, लेट अस डील विद दिस फर्स्ट। ये दोनों ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट जहां पे मिल रहे हैं, will it be on the line joining both the centers? Yes, sir. सिमेट्री है, 2 सिमेट्री है सर्कल्स का, ठीक है। अच्छा नाउ ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल, ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल से प्रूव कर सकते हो क्या? हाँ सर। Yes, sir. दोनों ट्रायंगल सिमिलर ट्रायंगल से, अग्रीड? यस सर। जस्ट फॉर माय क्यूरियोसिटी, हाउ? Angle. 90 तो दिख ही रहा है और अल्टरनेट एंगल्स थे, ठीक है। तो कैन आई से C1 और P और C2? तो C1P is to C2P is same as R1 is to R2, बिकॉज पहले सर्कल का रेडियस R1 है, दूसरे सर्कल का रेडियस R2 है, दूसरे सर्कल का रेडियस R2 है। तो ये रेशियो ऑफ द साइड्स सेम होना चाहिए ना। तो C1P is to C2P should be R1 is to R2. Is this clear everybody? यस सर। Yes, sir. ओके तो पॉइंट P ढूंढ सकते हो ना सेक्शन फॉर्मूला। Yes, sir. यस सर। Point P can be found out using section formula. Let me show you this one particular question. तो mx2 यहाँ पे 3 है, इसका 3 into 1 plus 3:1 था ना, तो 1 into -3 divided by 3 + 1, फिर 3 into 3 plus 1 into 1 divided by 3 + 1। ये सिंप्लीफाई होकर पॉइंट आ गया 0,5/2। ओके तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स मिला। इसका क्या फायदा? लाइन अज्यूम कर सकते। हाँ तो ये पॉइंट मिल गया हमें गाइस 0,5/2। दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट्स। नाउ बेसिकली द क्वेश्चन है अभी T1 = T2 किया तो मिलेगा। हाँ T1 T2 यार कौन से पॉइंट के लिए कर रहा है?
सर ये C1 सर्कल से जो पास करेगा टेंजेंट वो C2 सर्कल से भी पास करेगा क्योंकि अपने पॉइंट P मिल गया। सर्किल से पास कर रहा है, व्हाट डज इट आई मीन? मीन C1 का जो टेंजेंट रहेगा वो C2 का which भी is टेंजेंट रहेगा, करेक्ट पासिंग थ्रू पॉइंट P वो C2 का भी रहेगा। करेक्ट। तो लाइक सॉल्यूशन स्टार्ट कैसे करूं, क्या लिखूं? सर मैं पूछ रहा हूँ शायद से वो लंबा हो जाए कुछ मिले ना बट हमें देखो, डोंट यू थिंक क्वेश्चन ऐसा हो गया कि बस एक ही सर्किल के पर्सपेक्टिव से सोचो, एक सर्किल है और एक पॉइंट है 0,5/2 तो और y मुझे minus y1। दो टेंजेंट्स ढूंढने के लिए बोला है। डोंट यू थिंक ये हो गया क्वेश्चन अभी? हाँ सर। तो पॉइंट ऐसे पता है तो like दो टेंजेंट्स कैसे ढूंढेंगे गाइस? y minus y1 plus y माइनस a y1 into वाला y1। मेथड वो कंप्लीटली मास्टर्ड है ना सबसे हाँ सर। ओके तो y माइनस y1 मतलब फर्स्ट इक्वेशन का, जैसे कि छोटा वाला इक्वेशन है तो इसका y माइनस 3 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 1 प्लस माइनस रेडियस भी 1 ही आ गया था, 1 इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। फिर क्या करेंगे, विल पुट द पॉइंट 0,5/2 तो स्लोप मिल जाएगा, स्लोप मिल जाएगा। सॉल्व करके कुछ खास है नहीं, 0 और 4/3 मान लो मिल गए। तो ये दो स्लोप्स मिल गए, तो स्लोप मिलने के बाद फिर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट क्या होगा? y minus y1 is equals to m into x minus x1. We got two slopes. तो आंसर हो जाएगा y minus 5/2 equals to m into x minus x1. फर्स्ट टारगेट ये था कि पॉइंट ढूंढना हमने, पॉइंट ढूंढने के बाद फिर दो टेंजेंट्स ढूंढना हमें आता है। दो टेंजेंट्स ढूंढने का ये एक मेथड है। एक और मेथड था जो मैंने यूज नहीं किया, बट स्टिल वी कैन डेफिनेटली डू दैट। वी कैन यूज t square is equals to ss1. याद है ना? तो पेयर ऑफ टेंजेंट्स डायरेक्टली मिल जाएंगे, तो दोनों को फिर फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो So लेकिन मुझे डायरेक्ट का भी मिल गया। क्या क्या डायरेक्ट का भी मिल गया? यस, एक मिनट। स्लोप्स क्या आ रहे डायरेक्ट वाले के? सिर्फ -3/4 और 4। दूसरा वाला गलत है। -3/4 करेक्ट है। सर एक डाउट है जैसे बोलो। जरूरी थोड़ी है कि वो जो पी C1 और C2 की सिमेट्री बता रहे वो ऐसा हो, लाइक नहीं भी तो हो सकता है कि वो ट्रांसवर्स कॉमन टैंजेंट पे ना रहे। लेंथ ऑफ टेंजेंट्स इक्वल है ना कोई भी पॉइंट से? हाँ सर। तो ऊपर का लेंथ और नीचे का लेंथ सेम होना चाहिए। तो सॉर्ट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल जैसा ही होगा, मतलब सिमेट्री सही रहेगा। अगर तू कह रहा है कि एक बड़ा रहेगा तो तू सोचना कि क्यों बड़ा रहेगा। ओके चलेगा। नेक्स्ट पार्ट, ये आधा ही क्वेश्चन है। आर यू गाइस डन कॉपिंग दिस? No, sir. ये हमने सिर्फ डायरेक्ट कॉमन, सॉरी, ये हमने सिर्फ ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट ढूंढा गाइस, ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट ढूंढा। तो ट्रांसफर्स कॉमन टेंजेंट ढूंढने के चक्कर में एक प्रॉपर्टी डिराइव किया, द इंटरसेक्शन पॉइंट्स ऑफ द टेंजेंट्स divides the line joining the centers in the ratio R1:R2, जिसके थ्रू हमने सेक्शन फॉर्मूला बना के ये किया। हो गया तो बताना गाइस। सर ये हमने DCT का सॉल्व कर दिया ना? ये हमने TCT का सॉल्व किया। यस, ट्रांसफर्स वाला कर लिया, करेक्ट। नाउ डायरेक्ट वाला भी करना है, तो मैं पूछ रहा था कि डायरेक्ट वाला भी सेम थॉट प्रोसेस डायग्राम बना सकते हो क्या? सो एक्सटर्नली डिवाइड कर दिया। Yes, so R1:R2 एक्सटर्नली डिवाइड करता है। आई वांट अदर्स आल्सो टू रियलाइज इट। हाँ sir. डायग्राम बनाओगे तो विजुअलाइज होगा। आई वांट टू ड्रॉ द डायग्राम, आई एम जस्ट वेटिंग फॉर यू टू कॉपी दिस डाउन। कितनी देर लगा रहे हो पता नहीं।
ओके गाइस, टाइम अब बहुत ज्यादा हो गया, बाद में वीडियो में देख लेना फिर ये नेक्स्ट पार्ट। If I draw the diagram like this, it looks easier. Let us call this point as Q. ये भी 90 डिग्री से, ये भी 90 डिग्री से, ये R1 है, ये R2 है, तो ये Q divides C1 C2 in the ratio R1 is to R2 externally. Q divides C1 C2 in R1 is to R2 externally. So can anybody comment on this? सर वो जो बड़ा वाला ट्रायंगल और वो जो R2 छोटा वाला, yes. लाइक वो दोनों सिमिलर ट्रायंगल्स है। हाँ यस सर। बाकी सबको भी दिख रहा है क्या? हाँ सर। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन Q कैसे ढूंढेंगे? फिर सेक्शन फॉर्मूला करेंगे, R1 is to R2 से पॉइंट Q मिल जाएगा, फिर से सेम मेथड पिछले क्वेश्चन जैसा ही। डोंट यू थिंक सो? यस सर। पॉइंट मिल जाएगा तो फिर टेंजेंट्स मिल जाएंगे। तो होल चार्म इज टू फाइंड द पॉइंट्स। ठीक है, इसको कॉपी कर लोगे क्या? विल यू राइट इट इन योर ओन वर्ड्स? दैट इज करेक्ट अनिरुद्ध। ये पॉइंट आता है -3 नहीं सर मैं स्लोप्स भेज रहा हूँ। स्लोप्स भेजे क्या? स्लोप पर दूसरा वाला 0 नहीं है, देखना पहले वाले आंसर का भी 0 आया, इस वाले का भी 0 आ सकता है क्या? नहीं सर। इट्स नॉट पॉसिबल। क्यू पॉइंट क्या आ रहा है? सर 3,4 आया। थैंक यू, 3,4 seems correct. ओके गाइस, टाइम थोड़ा कम है। आई हैव 9:30 to 11:30 एक छोटा सा लेक्चर मुझे रखना पड़ेगा। बिफोर दैट once again homework will be given via WhatsApp group. Should the homework be reduced a little this time for today's lecture? हाँ सर, इस बार थोड़े लास्ट टाइम क्वेश्चन काफी बच गए मेरे। हाँ वही मुझे लगा, लास्ट टाइम ज्यादा दिया था बट few people have completed, तो accordingly मैं दे देता हूँ। चलेगा गाइस, हैव अ नाइस डे। बाय सर। Bye, Thank you, sir. sir. Thank you so much. Bye all. sir. बाय We'll सर। yes, bye. We'll continue with the same concept in the next class. Number of common tangents वाला concept ही, ठीक है? ओके सर, थैंक यू सर। Bye ओ all. सर, एक बस लास्ट चीज सर, रोल ओवर द आउटसाइड मतलब क्या होता है सर? रोलिंग तो तू जानती है ना? हाँ ये सर। तो एक बॉल एक दूसरे बॉल के ऊपर रोल कर रहा है, मतलब सर मतलब क्या होता है सर? मतलब उसके पेरीफेरी पे घूम रहा है? हाँ हाँ हाँ, लाइक ऐसा। ओके ओके सर, समझ गया। समझे ना? हाँ, कुछ खास है नहीं, उसका सेंटर भी कैसे रहेगा? उसका सेंटर भी प्लस आर हो जाएगा बस। हाँ हाँ सर, हाँ समझ। हाँ हाँ, उतना ही है। थैंक यू सर। बाय बाय, Bye, बाय sir. ऑल, Bye, sir. Thank you, sir. बाय बाय एवरीबॉडी।